Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSV physics class. So, this is this lecture 1. This class is for atom for your class 12 NEET and JEE. Okay. So, let us discuss some basic things. So, earlier 1898 that time. So, people are observing different from electrons are coming from different material. Okay, and J. Thomson है ना. So he has discovered electrons जो है ना. So that time, so different materials से electron is coming out. Okay, so there is lots of electron. So now atom is, so lots of electron is coming from electron. So but atom is, that time atom is just neutral. Atom, so neutral gas, and that principle is known. So now, so atom is neutral but electron is coming out, so there must be positive charge. So that time the concept was, so positive charge is uniformly distributed and electron is just embedded just in जो है रेसनिस इन योर केक है ना. सो केक के अंदर जो किशमिश रहता है, सो केक ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसा एम्बेडेड है कहीं है ना. सो ये मॉडल उस टाइम पे था. सो अगर दिस मॉडल इज फॉलोड फॉर एवरी एटम, so that time the criticality observed that every material has its characteristics x-ray and everything है ना. characteristics properties जो है ना, सबका जो x-ray अलग अलग आती है. so material का, so ऐसा अगर embedded सभी चीज में एक होगा तो ऐसा नहीं होगा. so that's why there is something. so in order to remove this ambiguity, his student, J. Thomson student Rutherford, Ernest Rutherford, he has proposed a Rutherford model in 1906, and an experiment has conducted by his student H. Geiger and E. Marsden in 1911, the great Rutherford model. वो उसका बारे में हम चर्चा करेंगे. सो नाउ हमारी इंडिया में भी उसी कनाड में हमें एटम का इसमें कॉन्सेप्ट दिए थे उस टाइम पे है ना. सो आप धीरे धीरे आपका जो है कैसे कैसे एटम का डिस्कवरी हो रहा है वो भी हम चर्चा करेंगे. सो नाउ लेट अस डिस्कस विद जो है रदरफोर्ड मॉडल. नाउ वी विल डिस्कस रदरफोर्ड मॉडल. सो इन 1911 जो है 1911 रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट हैज एग्जिबिट दिस एक्सपेरिमेंट. सो इन दैट केस there is a radiation source है ना. they have chosen the radiation source here. this is bismuth 83-214. it is emitting alpha particle, a alpha particle or He24 of जो है 5.5 MeV energy. it is incident on a thin gold foil. okay, बहुत थीन एक गोल्ड फॉयल है ना. दिस इज 2.1 into 10 to the power -7 मीटर. हाउ मच थीन यू कैन थिंक. 10 to the power -3 इज 1 मीटर इज 1 mm है ना. सो 1 mm से भी 1/1 10 to the power 4 जो है वो उसका. सो नाउ सो अब स्क्रीन, सो अल्फा पार्टिकल इन इंसिडेंट ऑन दिस स्क्रीन दैट इट इज एमिटिंग लाइट. दिस इज फ्लोरोसेंट and they are detecting seeing this light by using microscope. माइक्रोस्कोप पे नीचे वो लोग देखेंगे लाइट एंड इट इज दे आर moving this microscope all over the angle. now what they have observed, so of the one out of 8,000 particle it is scattering with greater than 90 degree and 20,000 में एक particle it is coming just back. it is coming back. so from this observation lots of particles just passing the gold foil. so from this observation they has predicted, so positive charge, this is alpha particle is positive charge, so there should be positive charge which is placed in a very small area, and another every atom space of this material या this gold है ना, this is gold foil है ना. so it is जो है it is passing all over the atom except some position that is just reflecting back due to this heavy charge जो है ना. so you can consider they have predicted the model
this is your positive charge concentrating. This positive charge concentration is called, they have called nucleus. किसी भी आम फ्रूट जो है, फ्रूट्स का एक बीज जैसे न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस एंड ये इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द, ये आपका जो है न्यूक्लियस. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो है आपका, अब यहाँ पे जो है आपका ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज और ये आपका अल्फा पार्टिकल आ रहे थे ना. सो ये आपका न्यूक्लियस. सो अल्फा पार्टिकल, it is just going through the atom and very small, it is coming backward, back scattering जो है ना. और मैक्सिमम जो है बहुत कम जो है 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटरिंग हो रहे हैं ना. ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है, 8000 में 1 पार्टिकल. नाउ फ्रॉम दिस मॉडल, सो देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ JD and it is twice C. This is alpha particle He24 है ना. So its energy you know 5.5 MeV. So half mv square equal to JD. JD जो है और twice ही और 4 पाई जो है आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड देयर इज ए इलेक्ट्रिक जो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा ना आपका इलेक्ट्रिक फोर्स दैट विल बी दिस, ये जो है आपका. सो मैक्सिमम आप मान लीजिए यहां से न्यूक्लियस के नजदीक में आपका जो है d डिस्टेंस तक पहुंचा है ना. सो दिस इज द 4 है ना. सो दिस इज यहाँ पे जो है आपका 4, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू आपका जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ना. सो ZE दिस चार्ज एंड दिस इज ट्वाइस C बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 d डिस्टेंस तक है ना. सो दिस इज द, सो यहाँ से आपको जो है d ऑफ द ऑर्डर ऑफ आपको जो है आपको यहाँ से आप इतना डिस्टेंस तक सो आपको मिल जाएगा. कितना डिस्टेंस, दिस इज न्यूक्लियस का साइज, ये आपका न्यूक्लियस का साइज है ना. सो d ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 15 to 10 to the power minus 14. So 10 to the power minus 15 is 1 Fermi. So 1 Fermi to 10 Fermi is the size of typical size of nucleus. And from kinetic theory of gas, the size of the atom is of the order of 10 to the power minus 10 meter है ना. So 10 to the power minus 5 टाइम जो है आपका जो है ये आपका लेस जो है आपका ये साइज है ना एटम का. सो यू जस्ट कंसीडर इट इज ए बिग फुटबॉल ग्राउंड एंड देयर इज ए फुटबॉल इन द ग्राउंड. एक फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल जैसी न्यूक्लियस है ना. सो ये मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटम इज जस्ट वैक्यूम जो है आपका स्पीसीज है ना. एंड इलेक्ट्रॉन इज दिस मॉडल इज दैट टाइम इट इज वेरी मच फेमस. सो नाउ there is a electromagnetic theory is coming. So when electron is moving around the nucleus, so there is a, when it is bending there is acceleration. So charge particle accelerator means it will emit radiation है ना. electromagnetic theory है ना. So accelerated charge particle emit radiation. सो रेडिएशन मीन्स इसका एनर्जी निकल जा रहा है. सो एनर्जी निकल जा रहा है मतलब जो है ये आपका इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, सो आप इसका एनर्जी कम हो रहा है, इट विल गो कमिंग क्लोजर देन इट विल गो टू न्यूक्लियस. then the atom, there will be no existence of atom, but still atom is existing na. So the drawback of this Rutherford model is could not explain the stability of nucleus. सो अब यहां से जो कंटिन्यू एंड जो एनर्जी निकल रहे दिस इज द रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपका इक्वल टू h न्यू है ना, इक्वल टू h न्यू. सो इसका रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी सेम. सो जैसा रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी. सो अब दिस फ्रॉम दिस मॉडल अब यहाँ से उस टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से जो स्पेक्ट्रा लिया जा रहा था. सो हाइड्रोजन एटम का सब यहाँ से स्पेक्ट्रा कैसा आएगा. सो व्हेन इट इज गोइंग क्लोजर इट विल एमिटिंग रेडिएशन. सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एमिशन है ना. दिस इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ना.
क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस एनर्जी निकल रहे हैं। बट इवन ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो है ये इसका जो स्पेक्ट्रम लिया जा रहा है, सो देयर इज ए कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम, सो देयर इज डिफरेंट लाइंस, है ना, दैट आई विल एक्सप्लेन, बर्मा सीरीज है ना। सो लाइमैन, फर्स्टर, ब्रैकेट, फंड, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम इज देयर, और लास्ट में ये कॉन्टिन्यूम, है ना। सो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन स्पेस ऑफ जो इन प्लेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जाकि यहाँ पे राधापुर मॉडल में आपको कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, बट actual case we are observing line spectrum that cannot be explained using Rutherford model. This is the Rutherford model drawback. Okay, now how Bohr has solved this drawback? Okay, we'll discuss Bohr model, how Bohr has solved this ambiguity arrived from Rutherford model. Now he has postulated this is a semi classical theory, है ना। सेमी जो है ये आपका उस टाइम में क्लासिकल थ्योरी, है ना। सो उस टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स का भी डेवलप हो रहे थे। ओके, सो उसमें जो है बोर्ड फर्स्ट पोस्टुलेट व्हाट इट ही इज सेइंग, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन ए स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सामने किसी भी स्पेसिफिक ऑर्बिट में, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, है ना, सो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, कोई भी ऑर्बिट, इसका बीच में कोई भी ऑर्बिट ले लो, ऐसा नहीं है। सो देयर इज ए स्पेसिफिक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, जहां जिस ऑर्बिट में घूमने टाइम इट विल नॉट एमिट एनी रेडिएशन। ये मजे की बात है। सो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट व्हेयर एंगुलर मोमेंटम, किसी भी जो ऑर्बिट जो है इसका, ये ऑर्बिट में घूमने के बाद उसका एंगुलर मोमेंटम मीन्स mvr equal to obviously nh by twice pi mean or nh cut, h by twice pi को कभी कभार h cut भी लिखते हैं, है ना। so mvr is the momentum, mvr is the angular momentum. If this is the radius r and this is the velocity v and this is the angular momentum, always will be some integer, n is integer, n is जो है आपका 1 2 3 integer multiple of h cut. ओके, सो अब ये जो nh by twice pi ये जो है ये स्पेसिफिक h is the Planck constant. So there is a Planck constant means it is coming quantum. So सेमी क्लासिकल जो है ये आपका क्लासिकल क्वांटम का बीच का जो मॉडल है ना। तो ये इस मॉडल से ये उन्होंने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, बट इस टाइप का ऑर्बिट में जैसे घूमेगा दैट टाइम इट विल नॉट एमिट रेडिएशन। नाउ अब ये जो ऑर्बिट है ना, ये डिफरेंट टाइप से जो ऑर्बिट देख रहे हैं। सो नाउ आई विल शो दैट देयर इज ये ऑर्बिट जो है ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा, नियरर टू द न्यूक्लियस इट हैज लेस एनर्जी। इफ इट इज E1 and it is E3, then E3 is greater than E1. So न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे उसका एनर्जी उतना बढ़ते जाएगा, है ना, हायर ऑर्बिट में एनर्जी बढ़ेगा, है। सो इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन इसका एनर्जी छोड़ रहे हैं ना, सो दिस इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट, दिस इज हायर एनर्जी ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा, सो दैट टाइम सो इलेक्ट्रॉन माइट टेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट ऑफ ये सब नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी। सो ये आपका एनर्जी अगर मान लीजिए छोड़ दिया, तो ये ऑर्बिट में जैसे जाम करेगा, सो यहाँ पे आपका एनर्जी छोड़ा, मतलब ये आपका इन टर्म्स ऑफ फोटोन, ये इन टर्म्स ऑफ जो है फोटोन पार्टिकल निकल के आएगा। सो व्हाट इज द एनर्जी, एच न्यू इक्वल टू E3 माइनस E1। सो दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आप दिखाएंगे कैसे। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के नजदीक जो नियरर ऑर्बिट में एनर्जी कम है, एनर्जी इज हायर इन हायर ऑर्बिट। सो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जैसे जंप करेगा, सो इट विल एमिट रेडिएशन ऑफ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना। सो ये पार्टिकुलर जो ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन सीरीज बनती है।
लाइमैन पास्चर फंड, ये सब है ना, ब्रैकेट, ये सब जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं। सो ये जैसे ये पार्टिकुलर इसका फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगा ना इन दोनों के एनर्जी से, सो एक पार्टिकुलर एक लाइन बनेगा, ना कि एक कॉन्टिन्यूम लाइन। ओके, सो एक पार्टिकुलर लाइन बनेगा, है ना। सो ये इसका लाइन अभी डिस्कस करेंगे, बोर क्वांटम कंडीशन फ्रॉम डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। सो इलेक्ट्रॉन is moving around a nucleus. Okay, so electron is moving as a particle and sometimes it is a wave also. So electron is just moving as just a wave, है ना, ये आपका। so ये क्या है, ये wave not is progressive, not a progressive wave, it is stationary wave, है ना, stationary wave। so stationary wave कब फॉर्म होगा, दिस इज इट इज द रेडियस ऑफ r, है ना, दिस सेमी क्लासिकल मॉडल अगेन, ट्वाइस पाई r इक्वल टू इन लैम्डा। सो ये आपका किसी इंटीजर मल्टीपल ऑफ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव कब फॉर्म होगा, आपका लैम्डा इज द वेव लेंथ, है ना, वेव लेंथ, क्योंकि ये वेव लेंथ का जो है टोटल एक फुल वेव लेंथ का जो है टोटल वेव का जो है टोटल नंबर ऑफ एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ ये वेव होगा। सो ये आपका एक स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा, है ना। आप इस टाइप का वेव भी फॉर्म कर सकते हैं जहां पे आपका इंटीजर मल्टीपल हो सकता है ना, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए वेव, जहां पे वेव लेंथ आपका ज्यादा है तो आपका काउंट नंबर एन का कम होगा। अगर वेव लेंथ जो आपका बहुत कम होगा तो आपका मतलब डिफरेंट ऑर्बिट का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सो इस टाइप में आपको स्टेशनरी वेव फॉर्म करने के लिए दिस इज द आपका जो है ये आपका बेसिकली ये कंडीशन फॉर स्टेशनरी वेव, है ना। सो स्टेशनरी वेव फॉर्म के लिए, सो नाउ ट्वाइस पाई r इक्वल टू, सो r इक्वल टू इन लैम्डा ओवर ट्वाइस पाई। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम जो है L इक्वल टू एम वी आर, मीन्स एम वी बाई जो है इन लैम्डा ओवर ट्वाइस पाई, है ना। नो जो है एम वी, सो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस व्हाट इज कॉल्ड, जो है आपका एच जो है पी इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, सो पी इज एम वी इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, है ना। सो एम वी इज जो बेसिकली एच ओवर लैम्डा इन लैम्डा ओवर ट्वाइस पाई, लैम्डा काट गया, सो एल इक्वल टू जो है एन एच बाई ट्वाइस पाई, दिस इज बोर क्वांटम कंडीशन, है ना, एन एच कट। सो फ्रॉम डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस वी आर गेटिंग बोर क्वांटम कंडीशन, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन विल ऑर्बिट इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज, जिसका एंगुलर मोमेंटम है एन इंटू एच कट, एच बाई ट्वाइस पाई। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, है ना, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का जो है रेडियस कितना होगा, एनर्जी होगा। सो एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑर्बिट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये हम देखेंगे, है ना। सो ये आपका न्यूक्लियस और ये nth ऑर्बिट में जो है आपका न्यूक्लियस इज द जेडी जिसका चार्ज है, एंड दिस इज द nth, ये रेडियस जो है rn, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v, बोर क्वांटम कंडीशन एम वी आर एन इक्वल टू जो है एन एच बाई ट्वाइस पाई। ओके, वी एन, है ना। सो वी एन इक्वल टू जो है एन एच बाई ट्वाइस पाई जो है एम, है ना, एंड आर एन, है ना। सो वी एन स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर जो है आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ओके, दिस इज योर one condition, and there is a Coulomb force,
and there is this is Coulomb attraction here, and there is a centrifugal force that is balancing. This one is Coulomb attraction, this is positive charge, this is electron, and another one is moving due to moving of this electron, there is a centrifugal acceleration. So m v square ओवर जो है r n equal to z e, this is the charge z e, and this is the z, and this is charge of electron, 4 pi epsilon 0 r n square, this is the orbit radius. Okay, so here v n square equal to how much, z e square ओवर जो है आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है आर एन स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन है ना, ऐसे एक रह जाएगा, और नीचे जो है आपका ये एक नीचे रह जाएगा, और ये आर एन हुआ और एम है ना, ये नीचे एम आएगा. ओके, z square over 4 pi epsilon 0, 1 rn is there and there is a m. So equating 1 or equation 2, how much, n square h square by 4 pi square m square rn square equal to how much, z square over 4 pi epsilon 0 आर एन एम है ना. सो इधर 4 इधर कर, सो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय इधर 4 पाई, इधर पाई रहेगा और पाई की इसके साथ एम भी रहेगा है ना, इसके साथ एम भी रहेगा, ये आर एन एक आर एन इधर रहेगा, दिस वन इक्वल टू जेड स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाई जो है एप्सिलॉन 0, इधर 4 पाई कट गया, इधर दिस इज एम, एक एम रहेगा. सो नाउ व्हाट इज द आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय जेड स्क्वायर पाई एम. See the situation what it is. So Rn equal to A0 n square, where A0 equal to जो है h square epsilon 0 over z square pi m. This is A0 is the fast Bohr orbit. So ये आपका एटम, ये एटम का ये डिफरेंट ऑर्बिट, फास्ट बोर ऑर्बिट जो है आपका ये हाउ मच इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power minus 10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम है ना. तो सी आपका जो है नाउ R1 जो है R1 इक्वल टू A0, R2 इक्वल टू 4A0, R3 इक्वल टू 9A0. सो दिस इज 9A0 है ना, दिस इज 9A0, दिस इज 4A0, दिस इज A0, एंड so electron is not revolving any for 1.1, 1.3 A0. This is specific orbit, that is A0, 4A0, 9A0, then 16A0, and this specific orbit electron is rotating. So that is given by Bohr है ना. So ये इसका ऑर्बिट का रेडियस है. इस टाइप से एक प्रॉब्लम आता है ना. So ये दिस इज इंपॉर्टेंट, Rn इक्वल टू A0 n स्क्वायर, ये आपको याद रखना है. A0 is the 0.53 angstrom है ना. Now we will be calculating the energy of this electron. इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है ना. सो आपका जो है टोटल एनर्जी जो है आपको ये आपको कैलकुलेट करना है ना. सो एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर एन इक्वल टू आपका जो है
क्या था आपका जेड स्क्वायर बाई 4πε0 आर एन स्क्वायर, है ना। दिस कूलम्ब फोर्स एंड दिस इज जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सो हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज ई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एन स्क्वायर, nth ऑर्बिट में सब है ना, एन स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच इट इज जेड स्क्वायर ओवर 4πε0 जो है एम, अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, सो दिस इज ओनली आर एन है ना, सो दिस इज आर एन, जेड स्क्वायर बाय दिस इज आर एन। नाउ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस जो है आपका, सो दिस पोटेंशियल ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए nth ऑर्बिट ये आपका है ना, दिस इज योर, यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑर्बिट है, ये आपका nth ऑर्बिट, ये इंफिनिटी से किसी भी पॉजिटिव, इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जेड स्क्वायर है ना बाय 4πε0 आर एन, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी यू है ना, और ये आपका माइनस जेड स्क्वायर बाय 4πε0, ये आपका, ये मान लीजिए ये आपका आर एन है ना, ये आपका पोटेंशियल है ना। आपका टोटल एनर्जी जो है इक्वल टू ई के प्लस यू इक्वल टू, ये कितना होगा माइनस हाफ ऑफ जो है जेड स्क्वायर बाई 4πε0 आर एन। सो आर एन का वैल्यू तो हमने कुछ टाइम पहले कैलकुलेट किए थे, ये आपने बैठाइए इसको है ना। सो यहाँ पे क्या होगा आपका जो है दिस इज इक्वल टू हाफ जो है जेड स्क्वायर बाय 4πε0 आर एन क्या होगा नीचे, नीचे ये ऊपर जाएगा पाई एम जेड स्क्वायर ओवर जो है नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 है ना। सो एन स्क्वायर एप्सिलॉन 0 ये टोटल एनर्जी ऑन वाई। सो .04 so total energy E equal to how much it is, so z square e to the power 4 है ना, m z square e to the power 4 m जो है बाय 8 जो है पाई तो नहीं है, दिस इज 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n square h square, this is negative. So negative means energy, this is bound energy. Negative means bound system. Bound system. The significance of the negative energy. So this is a bound system. If energy is positive, yeah, 0, then electron will just go. This is called ionization, है ना. So ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा अगर एनर्जी पॉजिटिव होगा. सो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के लिए ये जो है आपका हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 13.6 EV ओवर एन स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए. ये जो है ये एन स्क्वायर छोड़ के बाकी सब अगर ये करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए ये आपका एनर्जी. सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट जो है आपको आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, नेगेटिव. सो 1/n स्क्वायर की वेरी सेम. सो नजदीक ऑर्बिट में जो है आपका ज्यादा एन ज्यादा होगा, सो ये आपका कम होगा, मतलब नेगेटिव कम होगा, मतलब इट इज गोइंग टू बी एनर्जी पॉजिटिव. सी हेयर एन इज ज्यादा है ना, एन इज मोर, देन इसका ये वाला पोर्शन कम होगा, मतलब कम नेगेटिव होगा, मींस एनर्जी इज पॉजिटिव. सो हायर एंड हायर ऑर्बिट विल बी हैविंग एनर्जी पॉजिटिव, मींस दिस इज हायर एनर्जी ऑर्बिट एंड इन ये नजदीक जो ऑर्बिट है this is lower energy orbit and total energy is negative, that's why system is bound system. Okay, this is the significance of negative. Ground state energy of hydrogen is E equal to minus 36, n equal to 1, minus 36 eV. So this is the ground state energy of
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो 36 eV एनर्जी अगर देंगे, सो 1 इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन विल बी H प्लस, दिस इज प्रोटॉन, है ना. So limitation of this Bohr model, because this model is valid for one electron system, है ना, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम. एंड बोर मॉडल में आपका जो है इलेक्ट्रॉन इज स्पेसिफाइड इन ऑर्बिट, स्पेसिफिक ऑर्बिट में, मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स यू कैन नॉट स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा, है ना, दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, so quantum mechanics, so electron is just like आपका wave and probability of finding an electron around this orbit. यहाँ से आपका जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप जैसे केमिस्ट्री में सीखेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. दिस वेव फंक्शन विल बी डिटरमाइंड बाय श्रोडिंगर, है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ये सॉल्व करने के बाद आपको एक वेव फंक्शन मिलेगा, दिस इज the wave function psi, and probability of find the electron जो है this is proportional to psi mod square. ये आप देखेंगे different types of orbital, that's why s orbital का जो probability देखेंगे, this is round. p orbital is जो है आपका इस टाइप का, है ना, px py pz, है ना, और जो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल का ये सब प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे. ये थोड़ा ऊंचा क्लास में होगा, आप लोगों के लिए नहीं, है ना, बट इस टाइप का ऑर्बिटल आपको तो पता ही है. सो ऑर्बिटल इज द फाइंडिंग, सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहे, है ना. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. ओके, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, थैंक यू.